اور اب رخ کریں گے علاقائی خبروں کا اور آپ کو بتائیں کہ مردان میں بھی موسم سرد ہوتے ہی چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوئی گیس بھی مردان شہر سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر چلتی بنی۔ شہر بھر میں گیس بحران نے شدت اختیار کر لی۔ منظور حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح مردان میں بھی سردیوں کے ڈیرے، ٹھنڈے موسم میں چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوئی گیس بھی مردان شہر سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر چلتی بنی۔ شہر بھر میں گیس بحران نے شدت اختیار کر لی۔ مردان شہر اور مضافاتی علاقوں میں کہیں گیس غائب ہیں تو کہیں پر کم پریشر سے گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان ہو گئے۔ شہری کہتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث ہم لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ گیس جو ہے نا بالکل یہاں پر ہے نہیں، اگر ہے بھی وہ بالکل زیرو ہے، اس لیے ہم جو لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث ایل پی جی اور لکڑیوں کی مانگ بڑھ گئی، تاہم ایل پی جی اور لکڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لکڑیوں کے کاروبار سے وابستہ دکاندار کہتے ہیں کہ فی من لکڑی کی قیمت میں 200 روپے اضافے کے ساتھ 900 تک پہنچ گئی، جبکہ رہی صحیح کسر بھاری بھرکم جرمانے پوری کر رہی ہے۔ لکڑی 700 روپے پر بیچتے ہیں، ابھی یہ لکڑی ہم 900 روپے پر بیچتے ہیں، تو اس کا مین وجہ ایک ٹرپک کو، دوسرا موٹر وے پر لوڈنگ کا جو ہر گاڑی کو تقریباً 3 اور 4 ہزار جرمانہ کرتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت اور محکمے سوئی گیس حکام سے گیس لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ منظور حسین، سچ ٹی وی، مردان۔ گیس کی بندش کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ سندھ کے شہر قاضی احمد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس غائب ہو گئی۔ گیس کا بحران، شہری پریشان، معاملات زندگی شدید متاثر ہو کر رہ گئے۔ دن رات گیس غائب رہنے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سردی میں اضافہ ہوتے ہی قاضی احمد میں گیس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا۔ دن سے لے کر رات تک 18 سے 20 گھنٹے تک گیس بند رہنا معمول بن گیا۔ گھروں میں کھانا پکانا تک دشوار ہو گیا۔ شہری مجبور ہو کر ہوٹل سے کھانا خریدنے لگے ہیں۔ سردی آئی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے 24 گھنٹوں میں۔ لکڑی جو 600 روپے ملتی تھی من، وہ ابھی 1200 روپے ہو گئے۔ خدا رہا ہمارے اوپر ترس کا مزدوروں پہ۔ ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ سارا 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 6 گھنٹے گیس آتا ہے اور 18 گھنٹے بند رہتا ہے۔ ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ ہم جو شہری ہیں سارے شہری پریشان ہیں، روٹی کے لیے کھانے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارا کاروبار بہت ٹھپ ہو گیا ہے، سارا ختم، ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ ایک طرف مہنگائی تو دوسری جانب ایل پی جی سمیت متبادل ایندھن اور خشک لکڑیوں کی قیمت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات میں گر گئے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور خشک لکڑیوں اور ایل پی جی کی اضافی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ سکھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، مقدمات بھی درج ہوئے، لیکن لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی۔ موسم سرد ہونے سے بجلی کی طلب کم ہوئی، لیکن لوڈ شیڈنگ جوں کی توں ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں میں 15 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے سکھر سے زاہد شیخ۔ سیپکو حکام کے مطابق سکھر میں جاری بجلی چوروں اور نائندگان کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ سینکڑوں غیر قانونی کنڈا کنیکشن بھی ختم کیے گئے، بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے اور 100 کروڑ روپے سے زائد رقم بھی ریکور کی گئی، مگر کوئی بھی حکمت عملی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ بجلی کا مسئلہ جوں کا توں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہی ہے، اور اتنی لمبی لوڈ شیڈنگ، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے سولر پہ آ گئے ہیں اور غیر قانونی کنیکشن انہوں نے منقطع کر دیے۔ اس کے باوجود یہ جو بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو الیکٹڈ آپ کی حکومتیں تھیں ان میں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں ہوا۔ بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ نایاب بھی ہوتی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ شیڈول برائے نام کا ہی رہ گیا، جب دل کرے جب بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو صارفین سمیت کاروباری افراد بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ حالات اتنے، سکھر کے اندر لائٹ کا اتنا بڑا ایشو ہو چکا ہے۔ وابڈا کے جو چیئرمین ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے لوڈ شیڈنگ کے اندر کمی لایا جائے اور تاجروں کو ریلیف دیا جائے۔ سکھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے اور بجلی کی پیداوار کو بھی بڑھایا جائے۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ زاہد شیخ، سچ نیوز سکھر۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کاروباری حضرات پریشانی کا شکار ہیں۔ طویل لوڈ شیڈنگ نے کاروباری طبقے کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ شمس ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ آزاد کشمیر کوٹلی آبادی کے لحاظ سے بڑا ضلع ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موسم سرما میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری حضرات شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ بجلی بہت جانی بہت تنگ ہوئے ہیں، اس لیے اگر
हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली जानी, तो उसने वजह नाल असां भी बहुत तंग होई जाने हैं। लोड शेडिंग की वजह से बाज़ दुकानदार अपना कारोबार चलाने के लिए बैटरियों और जनरेटर का सहारा लेते हैं। अवाम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील की है कि सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाले खित्ते में लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। तो बहुत ही परेशान है, हाल में हम ना कारोबार कर सकते हैं क्योंकि हमारा निज़ाम जितना भी चल रहा है इस वक्त बिजली के बगैर तो नहीं चल सकता। ताकि महंगाई के इस दौर में लोग अपना कारोबार बेहतर तरीके से कर सके। कैमरा टीम के हमरा शम्स मलिक, सच टीवी, कोटली, आज़ाद कश्मीर। पसरूर में चोरी की वारदातें आम हो गई। मोहल्ला हनीफपुरा में चोर 100 kV ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। मुतादिद घरों की बिजली बंद, पानी की किल्लत से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। शदीद सर्दी में भी बिजली की बंदिश जारी है। लियाकतपुर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहरी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। घरेलू सारिफीन परेशान, कारोबार ठप होकर रह गया। तहसील लियाकतपुर समेत नवाही इलाका और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। घंटों बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुँचा। तहसील लियाकतपुर के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुँचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर होने लगा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के मसले को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। साहिवाल में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इकबाल राजपूत। साहिवाल शहर की गलियों में इंतहाई नीचे लटकती बिजली की तारें वापडा हुकाम की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। ये तारें किसी बड़े हादसे का पेश खैमा बन सकती हैं। बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया जाता है। वापडा हुकाम की गफलत और लापरवाही किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। ये तारें गली से गुजरने वाले राहगीरों की सनक से टकरा जाती हैं। शॉर्ट सर्किट की सूरत में बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है और वसी पैमाने पर न सिर्फ इंसानी जानों के ज़ाया होने का खतरा है बल्कि आग लगने की सूरत में बहुत से घरों के जलने का खतरा है। मुकामी शहरियों का कहना है कि नीचे लटकती बिजली की ये तारें बहुत खतरनाक हैं। तारा बड़ी झिकी जी देख लो, इन्हां दी वजह तो किसी टाइम कोई नुकसान हो सकता। बच्चे साढ़े खेलते जिथे कोई किसी टाइम भी कोई नुकसान हो जाए, मेहरबानी करके ऊंचा किया जाए। किसी भी वक्त कोई बड़ा साना पेश आ सकता है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल चौधरी मोहम्मद नवाज सलियारिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, सच टीवी, साहिवाल, जिला सरगोदा। जहलम की तहसील सोहावा में महकमा जंगलात की जानिब से बनाया गया लहड़ी नेचर पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। झूले टूट गए, पिंजरों से कीमती जानवर और परिंदे गायब हैं। कुदरती झील गंदगी से अट गई है। इसी हवाले से सोहावा से देखते हैं साजिद महमूद अवान की ये रिपोर्ट। सोहावा के करीब जीटी रोड पर महकमा जंगलात की जानब से करोड़ों रुपए की लागत से कई एकड़ पर बनाया गया लहड़ी नेचर पार्क महकमा जंगलात और हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जो के बाइस खंडरात में तब्दील हो गया। लहड़ी पार्क में कुदरती झील भी है जो पुठवार की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से सयाह आते थे और कैंप भी करते थे। लहड़ी पार्क के अंदर जो पहाड़ हैं उनके दामन में ये कुदरती झील है और मैं समझता हूँ कि ऐसी झील मैंने पठवार में कम ही देखी है। अगर हुकूमत यहाँ पे तवज्जो दे दे थोड़ी सी भी तो आप सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। लहड़ी नेचर पार्क में जगह जगह स्मॉल चिड़ियाघर भी बनाए गए थे जहाँ हर रंग और नस्ल के कीमती परिंदों और जानवरों को रखा गया था जो अब गायब हो चुके हैं। इनकी जगह खंडरात और कचरा ही नजर आता है। इस लहड़ी नेचर खूबसूरत पार्क में हम आते थे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत परिंदे और जानवर इन जंगलों में रखे जाते थे, लेकिन अभी आप देखें इन जंगलों की हालत, ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आता है। लहड़ी पार्क तहसील सोहावा का वाहिद तफरी मुकाम है जहाँ बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए थे जो टूट चुके हैं और कश्तीरानी भी होती थी जिनमें बच्चे बैठकर झील की सैर करते थे। लहड़ी पार्क में लगे हुए जो झूले हैं ये खस्ता हाली का शिकार है, ये टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि इस पे तवज्जो दें। सबक वज़ीरों समेत अहम शख्सियात भी इस पार्क का दौरा कर चुकी हैं। लागत से महकमा जंगलात की तरफ से बनाया गया लहड़ी नेशनल पार्क इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अवाम का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील है। साजिद महमूद अवान, सच न्यूज़, सोहावा। बहावल नगर की वाहिद तफरीह गाह वाइल्ड लाइफ पार्क में सहूलियात का फुकदान है। चिड़ियाघर तफरीह के लिए आने वाले बच्चे और ख़वातीन लुत्फ़अंदोज़ तो होते हैं लेकिन सहूलियात न मिलने पर शिकवा कुना है। बहावल नगर से रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार।
जानवर और परिंदे खुदा की तख्लीक का एक खास बाब हैं। इनके खूबसूरत रंग, आवाजें और हरकतें नाज़र को अपनी जानब ऐसे मुतवज्जो कर लेती हैं जैसे कोई मकनातीस लोहे को अपनी जानब खींच लेता है। एक वक्त था जब बहावलनगर के शहरी भी इन रंगारंग जानवरों को देख कर लुत्फ अंदोज होते थे, लेकिन ज़िले इंतजामिया और महकमा वाइल्ड लाइफ की अदम तवज्जो के बायस शहर वफा की सस्ती तफरीगा वाइल्ड लाइफ पार्क वीरानी का मंजर पेश करने लगा है, जहाँ बच्चे वालदेन के साथ आते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन चिड़िया घर की हालत देखने के बाद बच्चों के फूल जैसे चेहरे मायूसी की वजह से मुरझा जाते हैं। चिड़िया घर में जानवरों की कमी के साथ साथ ना तो पीने का साफ पानी मुयस्सर है और ना ही खाने पीने के लिए कोई कैंटीन फंक्शनल है। मैं आज अपने बहन भाइयों के साथ आया हूँ, अपने बाबा के साथ आया हूँ, तो आज मुझे पता चला है कि इधर ना ही लाइन है, ना ही एलिफेंट है, ना ही जिराफ है, ना ही स्नेक्स हैं। बच्चों को लेकर तो आए हुए हैं, लेकिन यहाँ ना चिड़ियाघर का बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, बच्चे बस थोड़ा बहुत ही इंजॉय किया है। वैसे भी यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए। अब काफ़ी अरसे से बना हुआ है, लेकिन तरक्की कुछ नहीं है इधर। सस्ती और म्यारी तफरी हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन बहावलनगर के शहरियों से इनका ये हक भी छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर वफा के बासी डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की खुसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। हुकूमत की जानिब से करप्शन पर काबू पाने के लिए स्टाम्प पेपर्स के इख्तियारात बैंक ऑफ पंजाब के हवाले कर दिए गए, जिस पर स्टाम्प फरोशों और साइलिन को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। जंग से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से करप्शन पर काबू पाने के लिए स्टाम्प पेपर कंप्यूटराइज किए गए। इकरारनामा, मुख्तारनामा, किरायानामा और दीगर मामलात में इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प पेपर के इख्तियारात बैंक ऑफ पंजाब के हवाले किए गए, जिससे स्टाम्प फरोशों का जरिया मुआश मुतासिर हुआ। मुख्तारनामे थे, अवतारनामे थे। मुख्तारनामा खास प्यारे मुकदमे के लिए थे, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये हमारे इख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं और ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो पंजाब बैंक को तफवीज़ कर दिए हैं। अब इस मुश्किल और महंगाई के दौर में जब हमारे पास सिर्फ बयान हनफी रह गया 300 वाला, हम इसके ऊपर इस्लाम जारी नहीं कर सकते। 500, 750 और 350 जितनी भी मालियत के स्टाम्प थे सब हमसे मिलते थे, लेकिन अब वो सब स्टाम्प पंजाब बैंक देता है, जिसकी वजह से काफ़ी कारोबार मुतासर है। शहरियों को भी स्टाम्प के हसूल में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मैं 2-3 दिन से ज़लील व ख्वार हो रहा हूँ। मैं हुकूमत वक्त से इल्तिजा करता हूँ कि बैंक निज़ाम का जो अस्टाम जारी करने का जो है ना, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और पहले की तरह अस्टाम्प फरोशों को ये अख्तियार दिया जाए। जबकि अब स्टाम्प फरोशों को भी ID फराम की गई हैं, जिनकी वजह से जालसाजी का अंदेशा नहीं रहा। अगर हुकूमत स्टाम्प फरोशों के इख्तियारात वापस करे तो इससे अवाम की मुश्किलात में कमी के साथ साथ इनके मुआशी हालात में भी बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन हमजा जफर के साथ मोहम्मद यूनुस, सच न्यूज़, जंग। मुजफ्फरगढ़ में ज़िला इंतज़ामिया ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी कराने में नाकाम हो गए। ट्रांसपोर्ट मालिकान शहरियों से मनमाने किराए वसूल करने लगे। मज़ीद देखते हैं समीउल्लाह की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने के बावजूद भी किरायों में कमी ना की जा सकी। ट्रांसपोर्ट वाले शहरियों से मनमाने किराए वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है जिले इंतजामिया की लिस्ट के मुताबिक किराए नहीं लिए जाते, बल्कि ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से बनाई गई लिस्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान 100 रुपए, इसी तरह अलीपुर 280, DG खां 160, कोटादू 170 रुपए किराया मुकर्रर किया गया है। की कीमत जो है गवर्नमेंट की जानिब से कम कर दी गई है, मगर किराया जो है ट्रांसपोर्टर ने अपनी मर्जी का भी लेना वसूल किया, मतलब मामूल बनाया हुआ है। मुल्तान DG खां के जो किराए हैं वो अभी भी 20 से 30 रुपए फी सवारी है जायद वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है पहले भी महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है, रही सही कसर ट्रांसपोर्ट वालों ने दुगने किराए वसूल करके पूरी कर दी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से किरायों में कमी कराने का मुतालबा किया है। हमारी टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। महकमा की शाहरात की लापरवाही कमालिया के मौज़ा मिल फतियाना से तारा हवेली तक रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। मालिया के नवाही इलाका मौजा मल फतियाना से खिची हेड तारा हवेली जलार सगला तक रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीनों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क की टूट फूट के बायस जहां मुसाफिरों की कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं हादसात का भी खतरा है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 साल हो गए ये सड़क तमीर की मुंतज़िर है, जो आज तक तमीर नहीं की गई। शहर जाना हो तो बहुत सी मुश्किलात दरपेश आती हैं। 2 साल हो गए जी, सड़क टूट फूट का शिकार है जी। असें साढ़े मरीज ले जाना होंदा तो बड़ी मुश्किल होती है। स्कूटरा दे गड्डियां दे टायर खराब हो गए। हुकामे बाला नूं गुजारिश है कि जल्दी तो जल्दी सड़क
ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਵੇਂ लगन हट के जेड़े साढ़े रोड़े जे पट्टे पे कोई स्कूटर ही ना टप सकता। ये सड़क शहर को मिलाने के साथ साथ दर्जनों देहात को आपस में मिलाती, इसको नए सिरे से तामीर करने के लिए तोड़ फोड़ कर दी गई। उसके बाद तामीराती काम रोक दिया गया। अब इमरजेंसी की सूरत में मकीनों ने मरीज को शहर ले जाना हो तो 1 घंटा लग जाता है। अहले दिया ने आला हुकाम से रोड को फिलफौर तामीर करवाने का मुतालबा किया है। असद राजपूत, साची न्यूज़ टीवी, कमालिया। सिंध के शहर दादू के अहम रास्तों पर जगह जगह तजावुजात की भरमार है। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से तजावुजात खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मीर शाहदाद खान। दादू में भी तजावुजात की भरमार के बाद शहरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आने लगी। जब हमारे शहरियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि शहर के मेन रास्तों पर जगह जगह तजावुजात की भरमार के बायस हमें आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आती है। इतने तजावुजात बड़े हुए हैं, रोड पे सामान शॉप में अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा रोड पे पड़ा हुआ है सामान, जिससे शहरियों को गाड़ियाँ लेके आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। घंटा घंटा लग जाता है 5 मिनट के सफर में। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि तजावुजात माफिया के खिलाफ एक्शन लेकर तजावुजात खत्म करवाए ताकि हमें पेश आने वाली मुश्किलात खत्म हो सके। मिर्शाद खान, सच न्यूज़, दादू। हुकूमतें बदली, इंतज़ामिया बदली और साल भी बदल गया, लेकिन हसन अब्दाल की हालत तेज़ार न बदली। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। पूरा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा, जिसकी वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल सबूर। हसन अब्दाल शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है, जिस वजह से दुकानदारों के कारोबार ठप हो गए। बदबू की वजह से दुकानों में बैठना भी दुश्वार हो गया। हुकूमतें बदली, इंतजामिया बदली, साल बदला, लेकिन हसन अब्दाल शहर की हालत जार ना बदली, क्योंकि जगह जगह गली महल्ला चौक चौराहों में गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी बदबू की वजह से गुजरने वाले दुकानदार और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। लोगों का घरों से निकलना भी मुहाल हो गया है। कई दिन अमला सफाई के लिए नहीं आता। देखिए, गंदगी के ढेर अस्पताल के सामने होने भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि मेडिकल स्टोर भी सारा है और इससे बीमारियां फैल रही है। आबो हवा भी देख रहे हैं, पोल्यूशन कितनी ज्यादा हो गई है और कोई तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं करता है। ये आबादी जो गंदगी है, ये पूरे इधर सफाई होनी चाहिए। जे बुजुर्ग बच्चे बीमार होने पे इधर सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। शहरियों का आला काम से फिल फोर सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने और अमला की रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटियां लगाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, हसन अब्दाल। टोबा टेक सिंह के डीसी कॉम्प्लेक्स का कोई पुरसाने हाल नहीं। जगह जगह खुर्द झाड़ियों और ताफुन से कूड़ा करकट के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। ये मनाजर हैं टोबा टेक सिंह डीसी कम्प्लेक्स के, जहां जगह जगह गंदगी और झाड़ियों की भरमार है। डीसी कम्प्लेक्स में सरकारी दफातर और 400 से जायद वकला के दफातर मौजूद हैं। डीसी कम्प्लेक्स में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों साइलिन अपने केसेस की पैरवी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ ना तो बैठने का मुनासिब बंदोबस्त है और ना ही पीने का साफ पानी मुयसर है। डीसी कम्प्लेक्स का वाहद फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से बंद है। डीसी कम्प्लेक्स में गंदगी और कूड़े की वजह से उठने वाले तफन से यहाँ आने वाले साइलिन और शहरी शरीर परेशानी का शिकार है। इतने बुकला है और दूर दूर से जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए ना तो बैठने की प्रॉपर जगह है और सफाई का नहायत ही नाक़िस इंतज़ाम है। डीसी के ऑफिस हैं, एसपी के ऑफिस हैं, फिर अदालतें हैं, वकला के चैम्बर हैं। बाहर से क्लाइंट आते हैं जिनके लिए ना बैठने की कोई जगह, ना पंखे, ना सायादार जगह, ना पेशाब करने की जगह। ख़वातीन भी आती हैं, परेशान होती हैं। वकला और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि डीसी कम्प्लेक्स की सफाई करवाई जाए और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और वाशरूम को चालू करवाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। बुरेवाला में महकमे सोशल वेलफेयर की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। दीवारें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी हैं। इमारत जराम पेशा अफराद की आमाजगाह बन गई। मोहम्मद करीम की रिपोर्ट देखिए। महकमा सोशल वेलफेयर का दफ्तर जो शहर के मरकज में 3 कनाल से जायद कीमती अराजी पर कायम है, इस दफ्तर की बिल्डिंग बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। इसकी दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर चुकी हैं। अब ये दफ्तर कचरा कुंडी में तब्दील होकर नशइयों की आमाजगाह बन चुका है। अहले इलाका के मुताबिक इस बिल्डिंग की 4 दीवारी न होने की वजह से ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एरिया में पहले बड़ा अच्छा दस्तकारी स्कूल था, यहाँ पे गार्ड का घर था और बड़ी अच्छी वो चौकीदारी करता था। अब तो दीवारें गिर गई हैं, लोग ईंटें तक उठा के ले गए हैं, कूड़े की ये आमाजगाह बना हुआ है। जबकि समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि हम इस बिल्डिंग की आज सरे नौ तामीर के लिए मुतअद्दिद बार आला हुकाम को दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमने कई मरतबा DCBRD और कमिश्नर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन अब
ये आप देख भी सकते हैं कि ये बिल्डिंग और ये चार दीवारी खंडरात बन चुकी है। हुकूमती इदारों की अदम तवज्जो की वजह से ये दफ्तर अब भूत बंगला का मंजर पेश कर रहा है। फलाही इदारों की सरपरस्ती करने वाला ये सोशल वेलफेयर का दफ्तर अब खुद किसी मसीहा का मुंतज़िर है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी असर नौ तामीर करके इसे अपनी असल हालत में बहाल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। महंगाई की चक्की में पिसने वाले भट्टा मजदूर आज भी इस्तेहसाल का शिकार हैं। तहसील कबीरवाला में कम उजरत पर दिन भर काम करने वाले भट्टा मजदूर भी बढ़ती हुई महंगाई से बदहाल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी राहिल रियाज। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान हाल है। भट्टा पर काम करने वाले मजदूर सख्त गर्म और ठंडे मौसम में सुबह सवेरे काम पर पहुंच जाते हैं। गारे से अटे हाथ और भट्टी की हिद्दत से इनके दिन का आगाज होता है। ऐसे ही माहौल में तहसील कबीरवाला में नस्ल दल नस्ल गुलामी की चक्की में पिसने वाले भट्टा मजदूर जदीद और महंगाई के इस दौर में इस्तेहसाल का शिकार हैं। भाईजान बड़ी महंगाई है भाई, साढ़े रोजी नहीं पूरी होती, 500-600 दिहाड़ी बनती है। इतना आटा महंगा है पिया, पेट्रोल है पिया, महंगाई साढ़े जड़ी है बड़े जड़ा ना कांड तरोड़ी खाली है पे। कबीरवाला, कुंड, सरगाना, कतालपुर, कोट सलाम के भट्टा मालकान कमजोर माशी हालात का फायदा उठाते हुए इन पर कर्ज का बोझ डाल देते हैं, जिससे ये सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकते। रही सही कसर हुकूमत वक्त ने शय खुर्दोनोश को महंगा करके निकाल दी है। महंगाई बड़ी है भाई, असा साल से पाना सुबह को शाम तक काम करने 600 रुपये दिहाड़ी पमदी है। साढ़े निक्के निक्के बच्चे साढ़े नहीं पूरी पमदी। मेहरबानी महंगाई घाट करो, साढ़ा मजदूरी साड़ी बता दी है। कबीरवाला, कुंड, सरगाना, कतालपुर के भट्टा के मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार 1000 ईंटें बनाने के 600 से 700 रुपए तक उजरत देता है, जबकि हुकूमत पंजाब के गजट नोटिफिकेशन में 1000 ईंट की कम से कम उजरत 1500 रुपए मुकर्रर हुई है। जबकि दूसरी जानिब कबीरवाला के शहरियों ने चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टों को फौरी सील करने और जुर्माना आयद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम की हमरा चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़ कबीरवाला। चीचावतनी में फार्मी अंडे गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। अंडों की फी दर्जन कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, कोई पुरसाने हाल नहीं। मज़ीद जानते हैं महर अजहर की इस रिपोर्ट में। जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, चीचावतनी में अंडों की फी दर्जन कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सरकारी कीमत फरोख्त फी पेटी 10,740 रुपए होने के बावजूद अंडे होलसेल में 11,400 रुपए फी पेटी फरोख्त हो रही है। मैं आज 39 चुंगी पर अंडों की ट्रे लेने आया हूँ, जो कि फ़ी अंडा 35 रुपये में पड़ता है। लिहाजा मेरी मौजूदा हुकूमत से अपील है कि अंडों की कीमतों में कम से कम कमी की जाए, ताकि हर गरीब आवाम खरीद सके। और एक अंडे का जो रेट है वो 35-36 रुपये है, और लिहाजा मेरी मौजूदा हुकूमत से अपील है कि अंडों का रेट कम किया जाए, ताकि गरीब अमीर आदमी हर खा सके। शहरियों का कहना है कि शहर में फी अंडा 35 रुपए और देहात में फी अंडा 40 रुपए का फरोख्त हो रहा है। फी दर्जन 400 रुपए और 420 रुपए और देहात में 480 रुपए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाइल हैं और बेबस नजर आ रही हैं। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि अंडों की कीमत में कमी की जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाइल की जाएं। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ महर अदर, सच न्यूज़, चीचावतनी। मुल्क भर की तरह ज़िला कोहाट में भी महंगाई अरूज पर है। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें बढ़ने से आवाम परेशान हैं। 2 हफ्तों के दौरान ब्रायलर गोश्त की कीमतों को भी पार लग गए। रिपोर्ट करेंगे कोहाट से अली बंगश। मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी महंगाई बरकरार है। अशिया खुर्दोनोश के साथ मुर्गी ब्रायलर गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा है। जिंदा ब्रायलर फी किलो की कीमत 330 रुपए से बढ़ाकर 405 रुपए तक जा पहुंची है। इसी तरह फार्मी अंडे का रेट फी दर्जन 300 रुपए से बढ़ाकर 410 रुपए तक हो गई है। ये ब्रायलर जिंदा मुर्गी की बात करें तो इसका रेट 300 से लेके एक हफ्ते में 410 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अंडे की कीमत की बात करें तो अंडा पहले 20 रुपए का था, अब 40 रुपए का हो गया है। 410 रुपया वो दर्जन मिल रहा है अंडा। अब गरीब आवाम को मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन चुका है। इसी तरह स्कूल के बच्चे सुबह का नाश्ते में अंडा खाने से महरूम हो चुके हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें और प्राइस कमेटियों के किरदार को फहाल किया जाए। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। जलालपुर पीरवाला में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। कौमी और सूबाई हलकों में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद गहमा गहमी बढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी।
जलालपुर पीरवाला में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। कौमी और सूबाई हलकों में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद गहमा गहमी बढ़ गई, जबकि नई हुकूमत के आने पर महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा करती दिखाई देती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कोई भी आए लेकिन अवाम के सर से महंगाई का बोझ उतारे। हमें इनसे तो कोई वास्ता नहीं है, हम तो उस लीडर को देखना चाहते हैं जो गरीब के लिए सुख सोचे, यानी कि महंगाई को कम करे। शहरियों ने नई आने वाली हुकूमत के आने से कबल ही मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर मुस्बत पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज, जलालपुर पीरवाला। चौक सरवर शहीद के हल्का PP 276 में सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की जानिब से जलसे जुलूसों सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। जलसे जुलूस, कार्नर मीटिंग, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जोरों शोर के साथ जारी है। PP 276 हल्का की मुख्तलिफ बरादरी ने साबिक MPA मलक मुर्जा रहीम खर की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। सपोर्टरान की जानब से जलसे जुलूसों का इनेकाद भी किया जा रहा है। जलसों में मलक मुर्जा रहीम खर के सपोर्टरान और वोटर कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इलाके में जो कैंपेन हम चला रहे हैं, मैं अकेला नहीं चला रहा, मेरे तमाम दोस्त चला रहे हैं और ये कैंपेन रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को अल्लाह ताला मुझे और मेरे दोस्तों को इंशाल्लाह जीत देंगे। इलेक्शन को लेकर वोटर सपोर्टर खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। धुंध से हर मंजर धुंधला सा गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शदीद धुंध और सर्दी के सबब बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद मैदानी इलाकों में धुंध की चादर तनी रही। धुंध के बायस हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद रहे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और बुरहान से इस्लामाबाद, स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइला, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर, हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से जारीकस, M14 को हकला से दाऊद खेल इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ढोडियाल और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे हैं। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। 4 सदा की तहसील शबकदर और मजाफात के इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शदीद सर्दी और धुंध के बायस सुई गैस और बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। नौशहर फिरोज और गिरदोनवाह के इलाके धुंध की लपेट में रहे। उबाड़ों में शदीद धुंध के बायस बिजली बंदिश से शहरी मुतासिर हुए। धुंध के बायस मोटरवे M5 उबाड़ों से रोहड़ी और मुल्तान शेर शाह इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। काजी अहमद में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह 50 मीटर तक रह गई। धुंध की वजह से नेशनल हाईवे भी बंद रही। बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला रहे। पहाड़ों की सरजमीन बल्तिस्तान में सर्दी तो आ गई लेकिन बर्फबारी नहीं हुई, जिससे पानी की किल्लत का खदशा है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई लेकिन मौसम सर्द है। महकमे मौसमियात की जानिब से भी बर्फबारी की कोई नवीद नहीं। मज़ीद देखते हैं फैसल दिलशाद की रिपोर्ट में। जाड़े ने धूम मचा दी। आबशारों की सरजमीन मुकम्मल जम गई, जिसे देखने मुल्क भर से सियाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही। इससे रवां साल पानी की किल्लत का खदशा है। सर्द मौसम की वजह से अवाम घरों तक महदूद रह गए। अवाम सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए लकड़ियां जलाते हैं, लेकिन आए रोज कीमतों में इजाफे की वजह से पहाड़ों के बासी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई आप सबके सामने है और यहाँ हमारे शिगर के अंदर बल्कि पूरे बल्तिस्तान के अंदर यहाँ अपने जिनके पास ज़राए आमदनी है, जो लकड़ी है, सफ़ेदा है, खुबानी के दरख्त हैं, वो काट के लोग पहले इस सर्दी को भगाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से वो भी इनके दस्तरस में नहीं है। यहाँ पे सर्दी के साथ साथ लकड़ी के जो दाम में इजाफा जो लोगों ने किया हुआ है, मंडी वालों ने, उसके अलावा LPG गैस का मसला है, उसके अलावा महंगाई, वैसे भी आप लोग सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। लकड़ियों की कीमत में इजाफे की वजह से अवाम परेशान है। हर जगह लकड़ी और LPG महंगे दामों फरोख्त हो रही है। अवाम ने जिला इंतजामिया से अपील की कि मुतबादिल ईंधन के मुनासिब दाम तय करे ताकि सर्दी चैन से गुजर सके।
जनवरी ने आवाम को दे दिया तेज तरीन सर्दियों का बड़ा झटका और गैस बिजली सर्दी की तेजी से रूठ गई है। सखर से हाजी रियाज खोखर की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया, कारोबार जिंदगी मफलूज हो गई। सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस और सेप्को ने बिजली की लोड शेडिंग में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आवाम सर्दियों की शिद्दत से बचाव के लिए लकड़ियां जला रहे हैं। लकड़ियों की मांग में और कीमतों में इजाफा हो गया है, कारोबार और जिंदगी मफलूज होकर रह गया है, लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। सर्दी और लकड़ियाँ भी बहुत महंगी है, नहीं मिल रही हैं और लाइट का भी मसला है, बहुत परेशान हैं लोग, बहुत शदीद सर्दी है। ये रात से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और जो है ना सर्दी की वजह से गैस में भी कमी है, बिजली भी बंद है, सारा दिन से सारी रात से ही बिजली बंद है, उसमें जो है गरीब आवाम को बड़ी तकलीफ़ है। सर्दी बहुत बढ़ गई है सखर में और लाइट भी नहीं है, रात से गई भी है। जैसे रात से सर्दी बढ़ गई है तो लाइट तकरीबन गई है, गैस भी नहीं है। तो बिल्कुल जी, सखर में तो 2 दिन से बिल्कुल सर्दी बढ़ गई है और यहाँ के आपको पता है मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। एक तो नौजवान जो है बेरोज़गार हैं। महकमे गैस और बिजली की लोड शेडिंग में कमी करके आवाम की मुश्किलात को कम करें। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़ सखर। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।